We are in a very beautiful month. हम बहुत सुंदर महीने में है। It's the month of March. मार्च का महीना है। 2000 years ago, 2000 साल पहले God came down as man, प्रभु मनुष्य के रूप में नीचे आए, loved us so much, हमसे इतना प्यार किया, took a big risk to come and stay with man. बहुत बड़ी जोखिम उठाई आकर मनुष्य के साथ रहने के लिए। And I thank God for that risk. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उस जोखिम उठाने के लिए। Died on the cross, क्रूस के ऊपर मरे, rose up on the third day. तीसरे दिन फिर से जी उठे। So we are in that season, तो हम उस मौसम में है and we are all going to eat the fruit of the labor of Jesus. और हम सब जो है यीशु के परिश्रम का फल खाने वाले हैं। Please write, लिखिए, I, my family, मैं और मेरा परिवार, my business, मेरा व्यापार, my work, मेरा काम, my relationships, मेरे रिश्ते, my ministry, मेरी सेवकाई, the city, ये शहर, the state, महाराष्ट्र and the nation. और ये देश, We will all eat हम सब खाएंगे the fruit फल, of the Lord's labor. प्रभु के परिश्रम का फल। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहे Amen. आमेन। Psalm 102 verse 13. भजन संहिता 102 अध्याय वचन 13। This month is called the Mercy March. ये महीने को कहा गया मर्सी मार्च। Yes. So here's a beautiful prayer. तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रार्थना है And they are saying to God, और वो प्रभु से कह रहे हैं, God arise प्रभु उठ खड़े हो जाओ and have mercy on us. और हम पर दया करो प्रभु। Is there anybody who is saying, God arise ऐसा कोई है जो कह रहा है प्रभु उठ खड़े हो जाओ and have mercy on us? और हम पर दया करो प्रभु। Yes. I am one among them. मैं भी उनमें से एक हूँ। And then it says, आगे कहता है, your time to favor her has come. उसके ऊपर तेरे कृपा दिखाने का समय आ गया है। Wow. Okay, let me define mercy. ये दया क्या, उसकी परिभाषा बताने दो। Yeah. Very simple. बहुत आसान। I deserve the good which I receive the good that I don't deserve. मुझे वो भली बात मिलती है जिसके मैं लायक नहीं। Yeah. So if you want to define mercy, तो यदि आप ये दया को परिभाषा देना चाहते हो, very simple. बहुत आसान। Yeah. The good वो भली बात that I don't deserve, जिसके मैं लायक नहीं हूँ, that God will give it to me. वो प्रभु मुझे देंगे। Yeah. आमीन। And it begins now. और उसकी शुरुआत अभी होती है। Yeah. You may ask me, are you experiencing mercy of God? आप मुझसे पूछोगे क्या आप प्रभु की दया का अनुभव कर रहे हो? Yes. हाँ, I'm feeling mercy falling everywhere. मुझे महसूस हो रहा है हर जगह दया ही गिर रही है। Yeah. And I pray you, your family, और मैं प्रार्थना करता हूँ आप, आपका परिवार, your work, आपका काम, your ministry, आपकी सेवा, this church, ये कलीसिया, this city, ये शहर, your business आपका व्यापार, will have the mercy of God. उसके ऊपर प्रभु की दया होगी। Wow. Mercy will bring the favor of God. दया प्रभु की कृपा को ले आएगी। Mercy will bring the favor of God. दया परमेश्वर की कृपा को लाएगी। Mercy is a womb which gives birth to favor. वाह, दया वो गर्भ है जो कृपा को जन्म देती है। Yeah. Let me give you a verse. You'll help. It'll understand. आपको एक वचन देता हूँ, उससे आपकी मदद होगी। Genesis 39 verse 21. उत्पत्ति 39 अध्याय वचन 21। Okay, let me just say this. मुझे ये कहने दो, I feel the Lord is saying, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है प्रभु कह रहे हैं, you don't need to struggle. आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। My mercy will do the job for you. मेरी दया तेरे लिए वो काम कर देगी। So I declare over you. तो मैं आपके ऊपर घोषित करता हूँ, I declare over you. मैं आपके ऊपर घोषित करता हूँ, Your struggle आपका संघर्ष to cease. वो घटे, Cease. घट जाए। You rise up आप उठ खड़े हो जाओ in the blessing of God परमेश्वर के आशीष में, because God will have mercy on you. क्योंकि प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे। So the Lord was with Joseph. तो प्रभु यूसुफ के साथ थे। If you're alone, यदि आप अकेले हो, lonely, अकेलेपन में, people have forgotten you, लोग आपको भूल गए, no problem. कोई समस्या नहीं। Very simple question. बहुत आसान सवाल है, Is the Lord with you? क्या प्रभु आपके साथ है? You know, Jesus said something very beautiful. यीशु ने बहुत सुंदर बात कही, I will never leave you. मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, I will never forsake तुझे you. कभी त्यागूंगा नहीं। Even though you walk through the valley of the shadow of death, यदि तुम मृत्यु के घोर अंधकार से भरे तराई से होकर चले तो भी, yet I am with you. फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। So the Lord was with Joseph तो प्रभु यूसुफ के साथ थे and he showed him something. और उन्होंने उसे कुछ दिखाया। Yeah, tell your neighbor,
प्रभु तुझे भी कुछ दिखाने वाला है. अपने पड़ोसी से कहना प्रभु आपको भी कुछ दिखाने वाले हैं। Month of March, मार्च का महीना I pray मैं प्रार्थना करता हूँ God will show you His mercy. प्रभु आपको उनकी दया दिखाएंगे। God will show you His mercy. प्रभु आपको उनकी दया दिखाएंगे। Now He says, अभी वो कहता है because He shows you mercy, क्योंकि वो आपको दया दिखाते इस कारण favor will come in your life. कृपा तुम्हारे जीवन में आएगी। Yeah. People who thought marriage is not possible जिन लोगों ने सोचा शादी संभव ही नहीं है, because of the mercy of God, परमेश्वर की दया के कारण it will happen. वो होगा। Okay, what is favor? कृपा क्या है? You will be liked. आपको पसंद किया जाएगा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in your workplace, आपके काम के जगह पर you will be liked. आपको पसंद किया जाएगा। Among 5, 5 में से you will be chosen. आपको चुना जाएगा। 10, 10 में से you will be chosen. आपको चुना जाएगा। 100, 100 में से you will be chosen. आपको चुना जाएगा। आमेन। Small girl Mary, छोटी सी लड़की मरियम, she was excited about her marriage. वो अपने शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। Angel of God came. प्रभु का स्वर्गदूत आया। You know what was the greeting? Greeting पता है क्या? हम लोग बोलते हैं नमस्ते वगैरह, praise the Lord. उधर praise the Lord नहीं बोला। पता है क्या था? Do you know what the angel of God said? आपको पता है प्रभु के स्वर्गदूत ने क्या कहा? This was the greeting. ये उसके लिए अभिनंदन की बात थी। Yeah. अभिनंदन ने greeting बोल, Greeting सबको था। समझता है the greeting. You know what was the greeting? पता है ग्रीटिंग क्या थी? Highly favored of God. परमेश्वर की उच्च कृपा पाई हुई। She was not an MBA. वो MBA किया हुआ नहीं था उसने, Of course, she was not a CA. वो CA भी बिल्कुल नहीं थी। Young girl. जवान लड़की है, But she loved the Lord. लेकिन वो प्रभु से प्यार करती थी। And you know what the angel of God said? और आपको पता है प्रभु के स्वर्गदूत ने क्या Not कहा? favored. सिर्फ कृपा नहीं, Highly favored. उच्च कृपा पाई। So I declare over you, तो मैं आपके ऊपर घोषित करता हूँ, not just favored. सिर्फ कृपा नहीं। आमेन। I pray you will be highly favored. मैं प्रार्थना करता हूँ आप उच्च कृपा पाए हुए हो। I pray you will be deeply loved by God. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु के द्वारा बहुत गहरे प्रेम से प्रेम किए गए आप हो। Yeah. She was also wondering, what kind of greeting is this? वो भी सोच रही थी कौन से प्रकार की ग्रीटिंग मुझे मिल रही है। God was coming. प्रभु आ रहे थे। I declare to you, मैं आपके ऊपर घोषित करता हूँ your Jesus is coming. आपके यीशु आ रहे हैं। He's coming for you. He's coming for your life. वो आपके लिए आ रहे हैं, आपके जीवन के लिए आ रहे हैं, He's coming for your family. वो आपके परिवार के लिए आ रहे हैं, He's coming everywhere. वो हर जगह आ रहे हैं। Yeah. That womb of Mary was getting ready to release something. वो गर्भ मरियम का जो है तैयार हो रहा था किसी चीज को जो है स्वतंत्र करने के लिए। Your spiritual womb also is getting ready आपका भी आत्मिक गर्भ तैयार हो रहा है to release something. किसी चीज को स्वतंत्र करने के लिए। That's why God is saying, इसीलिए प्रभु कह रहे हैं you highly favored of God. तू परमेश्वर की उच्च कृपा पाई हुई स्त्री। Yeah. So we were talking about favor, right? तुम कृपा के बारे में बात कर रहे थे ना? Accepted. अपनाए गए। Your enemies will accept you. आपके शत्रु आपको अपनाएंगे। Only for amen. सिर्फ 4 आमेन आए। Okay, when your enemy accepts you, जब आपके शत्रु आपको अपनाते हैं ना, there is peace. शांति होती है उसमें। No amen, no amen. And where there is peace, और जब शांति होती है there is development. वहां पर जो है उन्नति होती है। You can't have development where there is no peace. आप उन्नति नहीं देख सकते जहां पर शांति ना हो। And the Lord is saying, और प्रभु कह रहे हैं in your family also, तेरे परिवार में भी I am going to rebuke the spirit of strife ये झगड़े की आत्मा को मैं डांटने वाला so हूं, that there will come peace, ताकि वहां पर शांति आए, so that I can bring development ताकि वहां पर मैं उन्नति ले आऊं in your home, तेरे घर में, in your family, तेरे परिवार में, in your life, तेरे जीवन में, in your workplace. तेरे काम की जगह पर। We are talking about favor. हम कृपा की बात कर रहे हैं। Yes. Doors will be open for you. दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे। You know when the angel said highly favored of God, आपको पता है जब स्वर्गदूत ने कहा प्रभु की उच्च कृपा पाई हुई स्त्री, you know what he was doing? पता है वो क्या कर रहे थे? He opened a door for her उस स्वर्गदूत ने उसके लिए दरवाजा खोला and said, enter. और कहा अंदर प्रवेश So करो। I declare over तो you, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ this month, ये महीना God will open the door for you. प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेंगे। What God opens, जिसे प्रभु खोलते हैं, आमेन कोई माइकल लाल बंद नहीं कर सकता है वो दरवाजा. आमेन आमेन। Nobody can stop.
कोई उसे बंद नहीं कर सकता। Good news. खुश खबर, Many men have risen. बहुत सारे जो पुरुष है ऐसे उठ खड़े हुए, Many women have risen. बहुत सारी स्त्रियां उठ खड़ी हुई, They have all died. वो सब मर भी They गए, are all in the grave. वो सब कब्र में। But one name लेकिन एक नाम keeps ringing all around. वो जो हर जगह गूंजता रहता है, Jesus. यीशु। Favor. कृपा, Yeah. You'll be treasured. आपको खजाने के जैसे संभाला जाएगा। When you are hurt, people will cry for you. जब आपको चोट लगे लोग आपके लिए रोएंगे, Yes, because you will be considered a treasure. क्योंकि आपको खजाना समझा जाएगा। You will be considered of great value. आपको जो है बड़े मूल्य का समझा जाएगा। Favor of God. परमेश्वर की कृपा। Some of you, maybe you're not okay in your soul. आप में से कुछ लोग शायद आपके प्राण में आप ठीक नहीं हो, Yeah. Maybe because of whatever is happening in your life. शायद जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसके कारण, Because life is not easy. क्योंकि जीवन आसान नहीं है। But it's a good thing. लेकिन ये अच्छी बात है। You know why? पता है क्यों? Because when life is not easy, क्योंकि जब जीवन आसान नहीं होता ना, you go to the one who gives you help. आप उनके पास जाते हो जो आपकी मदद करते हैं। Yeah. And then suddenly you begin to see, wow, फिर अचानक से आप देखना शुरू करते हो और कहते हो वाओ, wow, this is good. ये बहुत अच्छा है। So let me encourage all those who are feeling very low today. Very जितने भी low. लोग अंदर से बहुत लो महसूस कर रहे हैं उनसे मुझे कहने दो, All the low ones, जितने भी लो लोग हैं, don't worry. चिंता मत करो। It's the low that the Lord lifts. जो सबसे लो फील कर रहा है प्रभु उसे ऊंचा उठाते हैं। So if you're low today, तो यदि आप अंदर से लो फील कर रहे हो, yeah, God will lift you up. प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। Yeah. Yeah. God loves the low ones. प्रभु को जो लो वाले लोग हैं ना अच्छे लगते हैं। Yeah. In fact, Jesus said, यीशु ने कहा, I did not come for the healthy ones. जो तंदुरुस्त है मैं उन लोगों के लिए नहीं आया हूँ, Yeah. I came for the ones who are not okay. मैं उनके लिए आया हूँ जो ठीक नहीं है। Yeah. So if there is anybody who is not okay over here, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर ठीक नहीं है, you are qualified. तो आप उसके काबिल हो। Today you will have a visitation from God. आज प्रभु की ओर से आपके साथ मुलाकात होगी। Yes. So, okay, all the ones, I also feel sometimes very low. मुझे भी कभी कभी जो ना ठीक नहीं लगता अंदर से, Very low. बहुत लो फील होता है। But Bible says very clearly, लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है it is the lowly ones. जो सबसे निचले है ना, It's the ones who are down. जो निचले स्तर पे है, God loves to lift them up. प्रभु को अच्छा लगता है उन्हें ऊपर उठाने के लिए। But, worry, anxiety, depression, they're very dangerous. They'll kill you. लेकिन ये चिंता निराशापन जो है ना बहुत खतरनाक है, आपको मार डालेंगे, Yeah, they'll kill you. वो आपको मार डालेंगे। So, you have to come to the Lord. आपने प्रभु के पास आना है, Yeah. You have to come to the Lord. प्रभु के पास आना है। Psalm 42, verse 5. भजन संहिता 42 अध्याय वचन 5। Oh, my soul, हे मेरे प्राण, why are you like this today? तो आज ऐसा क्यों है? Why no smile today? मुस्कान क्यों नहीं है आज? It's like that. Sometimes it happens. कभी कभी ऐसा होता है, Hota. Yeah, it happens. कभी कभी होता है, But something we have to learn. लेकिन कुछ हमने सीखना है। He says, hope in God. वचन कहता है प्रभु में आशा रखो, Hope in God. प्रभु में आशा रखो। Yeah, okay, let me define what hope is. आशा क्या है वो बताने दो। Expect good from your good God. आपके भले परमेश्वर से कुछ भले बात की अपेक्षा रखो। When you come on a Sunday morning, आपको पता है जब रविवार सुबह आप आते हो, expect something good is going to happen. अपेक्षा रखो कि कुछ अच्छा जरूर होगा। Put your hope in God. तो वो कहता है अपनी आशा प्रभु में लगा, Expect good from God. प्रभु की ओर से कुछ अच्छा होने की अपेक्षा रख। Okay, let me give you one more verse. You'll feel better. और एक वचन देने तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा. Feel good. अच्छा महसूस होगा। But this is not wrong feel good. This is the right feel good. Okay. लेकिन ये गलत अच्छा लगना नहीं, सही अच्छा लगना है। Yeah. Psalm 92, last verse. भजन संहिता 92 अध्याय उसका आखिरी वचन। NLT. They will declare. वो घोषणा करेंगे, You will declare. आप घोषणा करोगे। What will you declare? आप क्या घोषणा करोगे? The Lord is just. प्रभु जो है धर्मी है, He is my rock. वो मेरी चट्टान है। And और आपको पता है there is no evil in God. प्रभु में कोई बुराई नहीं है, He is always good. वो हमेशा भले है, He's 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 always good. वो हमेशा भले है। Hope means what? आशा का मतलब क्या? Expect good. अच्छा होने की अपेक्षा रखो। Peter walking on the water.
पतरस पानी पे चल रहा था, saw the storm, आंधी को देखा, became fearful. डर गया अंदर से, He was dubifying inside. वो अंदर पानी के डूब रहा था। Then suddenly he realized फिर अचानक से उसको एहसास हुआ, he can give one shout, वो एक पुकार लगा सकता है, one name, एक नाम को, Jesus, यीशु, one name, एक ही नाम, Jesus, यीशु, one name, एक ही नाम, Jesus. यीशु। आमेन। Okay. Now some prayer, na, कुछ प्रार्थनाएं they don't even take 1 second to be answered. उनके लिए एक सेकंड भी नहीं लगता जवाब मिलने के लिए, क्योंकि अगर जवाब नहीं दिया होता ना, सीधा वो स्वर्ग निकल जाता। यस। So today, this morning, तो आज इस सुबह some answers are going to be like that. कुछ जवाब ऐसे ही होने वाले हैं। I call that emergency. मैं उसे कहता हूं इमरजेंसी। And today God is going to give some emergency answers in the mighty name of Jesus. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु कुछ इमरजेंसी जवाब देंगे यीशु के नाम में, Some emergency answers. कुछ इमरजेंसी जवाब। If he doesn't give, यदि वो जवाब न दे your business will die. तो आपका व्यापार मर जाएगा, Your relationship will die. आपके रिश्ते मर जाएंगे। I don't know what all will die. मुझे नहीं पता क्या क्या मरेगा, Our God is not a God who makes things die. लेकिन हमारे प्रभु ऐसे परमेश्वर नहीं है जो चीजों को मरने देते हैं। He said, I am life. उन्होंने कहा मैं खुद जीवन हूँ। Go back to Psalm 42. भजन संहिता 42 में वापस जाएंगे। Yeah, beautiful. The Lord is so good, you know. प्रभु बहुत भले है, पता है। Yeah. He says, hope in God. वचन कहता है प्रभु में आशा रख। And then he says, आगे कहता है I will yet praise the Lord. मैं फिर भी प्रभु की स्तुति करूंगा, Yeah, because help is coming. क्योंकि मदद आ रही है। Help is coming. मदद आ रही है। Yes. So there was a blind man. तो एक अंधा व्यक्ति था, His name is called Bartimaeus. उसका नाम था बर्तिमस। Okay, let me just tell you a bit about India भारत देश के बारे में थोड़ा सा बताने दो, with respect to blindness. अंधेपन के विषय में। In India, at least 200 million people are blind. भारत देश में कम से कम 200 मिलियन लोग अंधे हैं। 1 million यानी 10 लाख. We are praying that somehow Jesus would have one word. You know what is it? Mercy. मेरी ये प्रार्थना है कि कैसे तो भी करके यीशु एक शब्द बोल दे। Yeah. वो क्या है पता है? दया। यीशु नहीं बोले बाबा, हम बोले. हम बोले। Okay, no problem. So Bartimaeus heard Jesus is coming तो बार्तिमस ने सुना कि यीशु आ रहे हैं, because he heard Jesus heals. क्योंकि उसने ये सुना था कि यीशु चंगा करते हैं। Wow. What you hear is very important. आप क्या सुनते हो ना, वो बहुत महत्व का है। Sunday you are hearing, रविवार के दिन आप सुन रहे हो, but that hearing should bring faith. लेकिन वो सुनना जो है ना आपके अंदर विश्वास लाना चाहिए। Yeah. So it's not a good feeling. तो ये अच्छी भावना नहीं, महसूस होना नहीं है। No. It's a feeling which should say, yeah, that's it. It's mine. ये ऐसा महसूस होना है कि ये मेरा ही है, Yeah, it's mine. It's ये mine. मेरा है। It's mine. So if you are sick, तो यदि आप बीमार हो, yeah, that's it. It's yours. ये आपका ही है, फिर It's yours. ये आपका है, Yours. आपका है। Yeah. So he said, he was crying तो वो रो रहा था and he was shouting. और वो चिल्ला रहा था। So जैसे प्रभु का जो ग्रुप था ना, क्योंकि चिल्लम चिल्ली बहुत हो रहा था, because he was wherever he went around he did good and he healed all those who were oppressed by the devil. क्योंकि जहां कहीं भी प्रभु गए वहां पर उन्होंने लोगों को चंगा किया और जितने भी लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए गए थे उन्हें छुटकारा दिया। What a God we have served. कितने महान परमेश्वर की हमने सेवा अब तक की है। So he began to cry. तो वो रोने लगा। That's called prayer. इसे प्रार्थना कहते हैं, It's called desperate prayer. व्याकुलता से भरी प्रार्थना। It's called prayer of tears. ये आंसुओं से भरी प्रार्थना It's कहते called हैं, prayer of the heart. इसे दिल से की गई प्रार्थना कहते हैं। Yeah. दिल का आवाज प्रभु ने सुनना है. आमेन। And he shouted. He can't see. वो देख नहीं सकता, वो चिल्लाने लग गया। Yeah. He only has one color. उसके पास सिर्फ एक ही रंग है, Black. काला। He doesn't know any other color. वो कोई और रंग जानता ही नहीं। He has not seen the beauty of the world around. संसार में जो आसपास खूबसूरती उसने कभी देखी नहीं। He can only see one thing. वो सिर्फ एक ही चीज देख सकता है, Black. काला। But he heard लेकिन उसने सुना Jesus is coming. यीशु आ रहे हैं। Hope rose up. आशा अंदर जगी।
this is my day, man. आज का ये मेरा दिन है भाई, And nobody can take this day from my hand. और आज का ये दिन कोई मुझसे छीन नहीं सकता। This is my day. ये मेरा दिन है। Yeah. And maybe this Sunday is your Sunday. और शायद ये रविवार आपका रविवार है। Yeah. So when you go out, तो जब आप बाहर जाओगे, something good God has done for you. कुछ तो अच्छा प्रभु ने आपके लिए किया होगा, And you will say, और आप कहोगे, oh, the Lord has been good to me. प्रभु मेरे लिए भले रहे हैं। So he began to shout. तो चिल्लाने लगा। You know what was this prayer? पता उसकी प्रार्थना क्या थी? Jesus, यीशु, Son of David, दाऊद की संतान, have mercy on me. मुझ पर दया करो। So these words are flying in तो ये शब्द जो है ना हवा में उड़ रहे थे ऐसे। You know what he said? पता उसने क्या कहा? Have mercy on me. मुझ पर दया करो। You know what he was saying? पता वो क्या कह रहा था? God, give me what I don't deserve. प्रभु मुझे वो चीज दो जिसके मैं लायक नहीं हूँ। That should be your cry. ये आपकी पुकार होनी चाहिए। God, प्रभु give me what I don't deserve. जिस चीज के मैं लायक नहीं हूँ वो मुझे दो। This whole year, ये पूरा साल give me what I don't deserve. जिसके मैं लायक नहीं हूँ वो मुझे My दो। whole life, मेरा पूरा जीवन give me what I don't deserve. जिसके मैं लायक नहीं हूँ वो मुझे दो। So the words are flying in the air. तो शब्द हवा में उड़ रहे हैं। And the people around said, hey, chupet, gabbas. आसपास के लोग कहने लगे चुप बैठ। मराठी में, ए गब्बस रे, मराठी में कहते गब्बस रे, शांत हो। चुप बैठ। वो कहाँ शांत होगा? क्योंकि उसको पता यही मेरी आशा है। आमेन। This is my hope. यही मेरी आशा है। This is my hope. यही मेरी आशा I है। am not giving up. मैं हार नहीं मानने I'm वाला। not giving up. मैं हार नहीं मानने I वाला। will push through. मैं उसमें धकेल कर आगे निकलूंगा। आज कोई मुझे नहीं रोकेगा, आमेन। क्योंकि मेरी आशा मेरे सामने है। आमेन। My hope is in front of me. मेरी आशा मेरे सामने है। My expectation of good is in front of me. मेरे भले होने की अपेक्षा मेरे सामने है। Verse 48. वचन 48। Oh, yeah. So he shouted louder. तो और जोर से वो चिल्लाने लगा। Once you get a revelation, एक बार आपको प्रकाशन मिल जाता है ना Jesus is your hope. कि यीशु आपकी आशा है, Nothing can stop you. कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। फिर Yeah. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, your hope has come. आपकी आशा आ गई है। Jesus has come. यीशु आ गए हैं। Something good is going to happen. कुछ तो अच्छा होने वाला है। Something good is going to happen. कुछ तो अच्छा होने वाला है। Next verse, verse 49. वचन 49। When Jesus heard him, जब यीशु ने उसकी आवाज सुनी, he stopped. वो रुक गए। Mercy दया। makes God stop. दया प्रभु को रुका देती है। भीड़ चल रहा है बाबा, और वो अंधा है, पता नहीं कहां बैठा था, और वो भिखारी के कपड़े पहन के बैठा था और चिल्ला रहा है। सडनली यीशु रुक जाते हैं। देयर इज पावर इन मर्सी। दया में बहुत सामर्थ्य है। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, डोंट प्रे यूजलेस प्रेयर। बेकार की प्रार्थना मत करो। प्रभु को जाके ये मत बोलना मैंने 10 लोगों को खाना खिलाया कल और 4 कपड़े लेके दिया मैंने। प्रभु कहेगा जो भी तूने दिया ना वो भी मैंने ही तुझे दिया, कौन सी बड़ी बात कर रहा तू? What big thing you are talking to me? तो कौन सी बड़ी बात मेरे साथ कर रहा है? That breath also ना I gave. वो श्वास भी मैंने ही दिया है। उसको बोलना सब मेरा आपका ही है, आमेन। क्योंकि आपने ही मुझे दिया है। लेकिन ये जो प्रार्थना है ना, जो मैं आपसे मांग रहा हूं ना, मुझे वही देना जिसके मैं लायक नहीं हूं प्रभु, वही देना बस। दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। Give me what I don't deserve, oh God. जिसके मैं लायक नहीं हूं प्रभु, आप वो चीज मुझे दो। That's what Bartimaeus was saying. बारतिमस वही तो कह रहा था, Give me what I don't deserve. जिसके मैं लायक नहीं हूं प्रभु वो मुझे दो। Yeah. Okay. All the people who have made mistakes in life. जितने भी लोगों ने अपने जीवन में गलतियां की है, बाजुला उबर आ रहे। I have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। I can teach you a good prayer. मैं आपको अच्छी प्रार्थना सिखा सकता हूं। Pray what Bartimaeus prayed. बारतिमस ने जो प्रार्थना की ना वो प्रार्थना करो। You made mistakes in life. आपने जीवन में गलतियां की है, Nobody likes you now. कोई अभी आपको पसंद नहीं करता। I have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। Tell God, प्रभु से कहो, God, प्रभु have mercy on me. मुझ पर दया करो। This morning, इस सुबह God will stop. प्रभु रुकेंगे। Your prayer, it should invoke the mercy of God.
आपकी प्रार्थना ने परमेश्वर की जो दया है ना उसको जगाना है। Mercy is the beauty of God. दया परमेश्वर की खूबसूरती है। Yeah. So when you pray, तो जब आप प्रार्थना करते हो put a demand on that quality. उस जो गुण है ना प्रभु का उसके ऊपर मांग रखो। Yeah, मांग रखो. A very good student asked me, Pastor, how should I pray for my exam? बहुत अच्छे विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, पास्टर मेरे एग्जाम्स के लिए मैं प्रार्थना कैसे करूं? So the Holy Spirit told me, tell him to pray like this. तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा उसको ऐसे प्रार्थना करने के लिए बोल। I said, how? मैंने पूछा कैसे? Simple. Tell him, ask me what he doesn't deserve. उन्होंने कहा उससे ऐसा कहना कि मैं मुझसे वो मांग जिसके मैं लायक नहीं हूं। हाँ. And God gave him what he doesn't deserve. और प्रभु ने उसे वो दिया जिसके वो लायक नहीं था। I pray मैं प्रार्थना करता हूं throughout this year, ये पूरे साल भर you will receive what you don't deserve. आपको वो चीज मिलेगी जिसके आप लायक नहीं हो। So the Lord stopped. तो प्रभु रुक गए And the Lord said, call him. और प्रभु ने कहा उसे बुलाओ। Wow. I love mercy मुझे दया बहुत अच्छी लगती है because it brings you into his presence. क्योंकि वो आपको उनकी उपस्थिति में ले आती है। Wow. Bring him. उसे ले आओ। Bring that blind man. वो अंधे व्यक्ति को मेरे पास ले आओ। Bring that beggar over here. वो भिखारी को मेरे पास ले आओ। Bring the rejected one over here. जिसे तिरस्कार किया गया उसे मेरे पास ले आओ। Bring the poor over वो here. गरीब को मेरे पास ले आओ। Bring him over here. उसे यहाँ ले आओ। Why? क्यों? Because he has put a demand on my mercy. क्योंकि उसने मेरी दया की मांग रखी है And I will show him और मैं उसे दिखाऊंगा what my mercy is all about. मेरी दया के बारे में सब कुछ जो है I will show him. मैं उसे दिखाऊंगा। Call him. उसे बुलाओ। Soon you will be ushered into the presence of God. जल्द ही तुम प्रभु की उपस्थिति में आ जाओगे। आ जाओगे नहीं, तुम्हें बुलाया जाएगा। आपको बुलाया जाएगा। ऐसा ही कोई आ नहीं सकता है। आमीन। Good news. खुश खबर। Important people will call you. महत्वपूर्ण लोग आपको बुलाएंगे। You will get appointment with important people. महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। Why? क्यों? Mercy दया के कारण। will birth favor for वो you. आपके लिए जो कृपा को जन्म देगी। Yeah. People will call you. लोग आपको बुलाएंगे। They will say, call him. वो कहेंगे उसे बुलाओ। I pray मैं प्रार्थना करता your हूँ phone will ring. आपका फोन बजेगा। Yeah. It will ring with a good invitation. वो अच्छे आमंत्रण से बजेगा And it will open a door for you. और वो आपके लिए दरवाजा खोलेगा। So you know what happened? तो आपको पता है क्या हुआ? The ones who were saying, shut up. जो लोग कह रहे थे ना चुप बैठ, They only said, hey, cheer up. बुला रहा है. Hey, cheer up. उन्होंने कहा चल आ वो बुला रहे। जो तुझे दबाएगा ना वही तुझे दरवाजा खोल के देने वाला है. आमीन। Oh, come on, somebody Amen. should have. जो तुझे दबाने वाला है ना वही तेरे लिए दरवाजा खोल के देने Wow. वाला है, वही तेरे लिए बात करने वाला है. आमीन। And my Bible tells me और मेरी बाइबल मुझसे कहती he's है very rich in mercy. वो दया में बहुत धनी है। God is so rich in mercy. प्रभु दया में बहुत धनी है। So rich. बहुत धनी है वो। Bible doesn't say God is so rich in silver and gold. बाइबल ऐसा नहीं कहती प्रभु सोना चांदी में बहुत धनी है। He is. वो है पहले से। Bible doesn't say he's rich in power. बाइबल ऐसा नहीं कहती वो सामर्थ्य में धनी है। He is. वो है। But it says लेकिन ऐसा कहता है he's rich वो धनी है in mercy. दया में। क्योंकि हम सब यहां जिंदा क्यों है पता है? कि प्रभु के दया के कारण. आमीन। That's why Bible says he's rich. इसीलिए बाइबल कहती है वो धनी है। He's rich. वो धनी है। A woman caught in adultery was brought to Jesus. एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे यीशु के पास ले आए। You know, they said इसको पत्थर मारना है. उन्होंने कहा इसको पत्थर मार के मारना है। Jesus said okay, no problem. यीशु ने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं। Anybody who has not sinned, do it. कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जिसने कभी पाप नहीं किया तो आप करो। He was the only one. और खुद अकेले थे वहां पर He has never sinned. जिसने कभी पाप नहीं किया था। But he said to that lady, लेकिन उन्होंने उस स्त्री से कहा जिसने बहुत बड़े बड़े गलतियां की हैं, आज खुश खबर है तुम्हारे लिए. आमीन। मैं खुश खबर ले आया हूं. वाह। जिन्होंने भी बड़े बड़े गलतियां की है ना, आज प्रभु कह रहा है तेरे सारे पाप मैं माफ करूंगा. आमीन।
वाह, Yeah. Mercy. दया। But afterwards he said, don't live there लेकिन आगे कहा कि फिर से इसमें मत जीना, because it'll kill you. क्योंकि वो तुझे खत्म कर देगा। Bartimaeus. Oh, bring him. उसे ले आओ, Yeah. Bring him. उसे ले आओ। Your enemies are going to become your friends. आपके शत्रु आपके दोस्त बनने वाले हैं। Yeah. They'll become your friends. वो आपके दोस्त बनेंगे। This is a good year. ये अच्छा साल है 2024. 2024। Your enemies will speak for you. आपके शत्रु आपके लिए बात करेंगे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this year इस साल in your workplace, आपके काम के जगह पर your enemies will speak for you. आपके शत्रु आपके लिए बात करेंगे। In your business, आपके व्यापार your में enemies will speak for you. आपके शत्रु आपके लिए बात करेंगे। Come, he's calling you. आओ, वो आपको बुला रहे। Yeah, verse 50. Wow. वचन 50। That's it. So Bartimaeus said goodbye. तो बार्तिमस ने कहा गुड बाय। To begging, he said goodbye. भीख मांगने को कहा गुड बाय। This year, इस साल you are going to say goodbye to some of your old ways of life. आपके जीवन जीने के कुछ तरीकों को आप गुड बाय बोलने वाले हो। Yeah. Some old ways of your life. आपके जीवन के कुछ पुराने तरीके You are going to say goodbye. आप उन्हें गुड बाय बोलोगे, Because hope, you have met hope. क्योंकि आप आशा से मिल गए हो। Yeah. And mercy has come now. और दया अभी आ गई है। Yeah. He's so excited. वो बहुत उत्साहित है, Because mercy has said, come. क्योंकि दया ने कहा आजा। Wow. So he throws his begging clothes. तो वो सब अपने भिखारी के कपड़े फेंक देता है। वो बहुत उत्साहित है, Came to Jesus. यीशु के पास आया। And verse 51. वचन 51। Wow. What do you want? तुझे क्या चाहिए? Mercy will always say, दया हमेशा कहेगी what do you want? तुझे क्या चाहिए? And you know what he said? पता है उसने क्या I कहा? want to see, Lord. प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। Miracle happened. चमत्कार हो गया। Next verse. अगला वचन, Go, your faith has made you whole. यीशु ने उससे कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। Wow. Yeah. Go. जा। And then the Bible says something beautiful. फिर आगे बाइबल बहुत सुंदर बात कहती है, He followed Jesus. उसने यीशु का पीछा किया। As mercy begins to unveil itself to you throughout this year, जैसे दया अपने आप को खुला करने लगेगी आपके सामने ये पूरा साल, this year, ये पूरा साल you will begin to follow Jesus. आप यीशु का पीछा करना शुरू कर दोगे। Yeah. And very closely you will follow. और बहुत करीबी से आप उनका पीछा करोगे, Because God gave you what you don't deserve. क्योंकि प्रभु ने आपको वो दिया जिसके आप लायक नहीं थे। Is there somebody over here कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है who says, I need some big miracles now? जो कहता है अभी मुझे कुछ बड़ा चमत्कार Yeah, चाहिए, some big miracles. Yeah. बड़े चमत्कार चाहिए मुझे। I think you should tell the Lord, मुझे ऐसा लगता है अपने प्रभु से कहना चाहिए, I want your mercy. मुझे आपकी दया चाहिए। Let me give you 4 statements. 4 वाक्य आपको बताने दो, How to stay in the mercy of God. प्रभु की दया में कैसे बने रहना है। Number 1, पहला, give mercy to others. दूसरों को दया दो। Yeah. आमीन। I pray we will become a church where we give mercy to one another and to others. मैं प्रार्थना करता हूँ हम ऐसी कलीसिया बनेंगे जो एक दूसरे को और दूसरों को दया देते हैं। Yeah. Matthew 5:7. मत्ती 5:7, Blessed are the merciful. धन्य है जो दया दिखाते हैं। So one is receiving mercy from God, but God is also saying, I want you to stay in mercy. Stay in mercy. एक बात है प्रभु से दया पाना, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं ना, तुम दया में बने रहो। So as you give mercy, तो जैसे आप दया देते रहोगे, mercy means good to the ones who don't deserve. दया का मतलब भला करो उन लोगों के लिए जो लायक नहीं। जो लायक नहीं। हम बोलते नहीं ये टेढ़िया, इसको मदद करने का, हाँ उसको ही मदद कर। आमीन। तू कौन सा सीधिया था? I was no सीधिया। मैं तो सीधा नहीं था। और तू कौन सा बड़ा सीधिया? We are all टेढ़िया। हम सब टेढ़े ही थे। The mercy of God kept hitting our crookedness and slowly we are becoming straight, you know? परमेश्वर की दया हमारे टेढ़ेपन को आके टकराती रहे और Yeah. धीरे धीरे करके हम सीधे बन गए। Yeah. So to forgive, तो क्षमा करने के लिए it should become your nature. वो आपका स्वभाव हो जाना चाहिए। Number 2. दूसरा, Wow. You're with me? आप मेरे साथ हो? Yeah.
Proverbs 28:13. नीति वचन 28 में 13, Leave sin. पाप को छोड़ दो। If you leave sin, you will live in mercy. यदि आप पाप को छोड़ दोगे तो आप दया में जियोगे। जियोगे। जाने देना भी उसको, छोड़ना उसको, उस पाप को छोड़ना। Yes. Jesus told that lady, ना, यीशु ने उस स्त्री से कहा ना, I am giving you mercy. I'm not killing you. मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, तुझे दया दे रहा हूं। Yeah, I'm giving you mercy. मैं तुझे दया दे रहा हूं, But don't go back. लेकिन वापस मत जाना। Don't go back. वापस मत जा। Whoever confesses, leaves sin, God is saying, my mercy is on you. यीशु कहते हैं, जो भी मान लेगा और अपने पाप को छोड़ देगा तो मेरी दया तुझ पर आएगी। Yeah. Stay there. वहां पर ही रहो। Number 3. तीसरा, I like this one. मुझे ये अच्छा लगता है, Stay in God's presence. प्रभु की उपस्थिति में बने रहो। Hebrews 4:16. इब्रानियों 4 अध्याय वचन 16। May you be like a fish. होने तो आप ऐसी मछली हो। नहीं। May you be a fish. आप एक मछली बनो। मैं बताता हूं, आप एक मछली बनो। मछलियों को पानी लगता है, पता है? May you be a fish and the presence of God is your water. होने तो आप मछली बने और परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो आपका पानी रहे। Wow. That means you should love the presence of God. इसका अर्थ आपने प्रभु की उपस्थिति से प्यार करना चाहिए। That's why you should get up in the morning, इसीलिए आपने सुबह उठना है, see His face. उनका चेहरा देखना है। He is very good. वो बहुत अच्छे हैं, He's very sweet. बहुत मीठे हैं वो। And if you see Him, और यदि आप उन्हें देखोगे, wow, He's very beautiful. वो बहुत सुंदर है। He'll change your life. आपके जीवन को बदल देंगे वो। Anybody who feels singing to God is time pass, I'm telling you, you're out of God's mercy. जिस किसी को लगता है कि प्रभु के लिए गीत गाना टाइम पास करना है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु की दया के बाहर हो। Don't do like that. ऐसा मत करो। Yeah. Number 4. चौथा, Yeah. Call on God. प्रभु को पुकारो। Yeah. Psalm 86:5. भजन संहिता 86 अध्याय वचन 5। Lord, प्रभु, you are good, आप भले हो, ready to forgive. क्षमा करने के लिए तैयार हो। इसका मतलब ये नहीं जाके कुछ गलतियां करके आओ फिर। No, not like that. His heart is like that. उनका दिल ही ऐसा है। And और abundant supply उनके अंदर बहुतायत का सप्लाई है, of mercy. दया का। Never poor in mercy. दया में कभी गरीब नहीं है, Rich in mercy. धनी है दया में। To whom? To whom? किसके लिए? To all those who call upon the Lord. जो भी प्रभु के नाम को पुकारते हैं उनके लिए। Yeah. Lift your hands. अपने हाथों को उठाइए। Last minute. आखिरी मिनट, Call on Him. उनके नाम को He पुकारिए। is a Lord of mercy. वो दया के परमेश्वर है। Today, आज undeserved goodness of God, परमेश्वर की दया जिसके हम लायक नहीं है, may it fall on you. होने तो आपके ऊपर गिरे।